Hello students, myself Rita Khapekar, TGT Science, Jawahar Navodaya Vidyalaya Manpur, Indore. You all are welcome to my class. Today I'll be taking your chapter number 14. The name of the chapter is Electric Current and its Effect. Children will be learning about in this chapter what is electric circuit. In fact, children, you all are aware of electric current. You have learnt in your previous class, that is 6th class. उस चैप्टर में आपने छठी क्लास की 6th क्लास के उस चैप्टर में आपने पढ़ा था करंट क्या होता है, सोर्स ऑफ करंट क्या होता है और करंट या इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले कुछ अप्लायंसेस के बारे में भी आप जानते हैं. आप सभी जानते हैं आपके घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं. बच्चों, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. इनफैक्ट आपने 6th क्लास में भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब आपने किया हुआ है. उसी चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, 6th क्लास के प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आप सभी जानते. फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगी, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस which allow current to pass through it. For example, all the metals are good conductor of electricity. Then, the substances which do not allow the current to pass through them are called insulators, or they are called bad conductor of electricity. For example, wood, plastic. So, plastic do not allow current to pass through it. Even paper doesn't allow the current to pass through it. So children, let's start. Let's try to know what we are going to study in this chapter. So we'll be learning about electric circuit. Then you will come to understand what are the effects of electric current, and then heating effect, magnetic effect, and then the appliances or the uses of heating effect in our daily life, or the appliances which are used are working appliances which works on heating effect of electric current. So to understand what is electric circuit, please watch this video and then we will describe what is closed circuit and what is open circuit. Please watch this video. In this video, you can see that there is a bulb, connecting wire and switch, and source of cell is also there. So children, you can see that the source of current, which is cell, is providing current to glow this bulb through the conducting wire. You can see how the current is flowing inside the connecting wire and then through the filament of the bulb and then coming back to the second terminal of the cell. And when the circuit completes, the bulb starts glowing. So you can see in this video. Children, let's understand what is closed circuit and open circuit. So when in a circuit, we are using switch, bulb, connecting wire. So in a circuit, when switch is in off position, then the current is not flowing into the circuit. जब switch off position पर रहता है तो करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता और बल्ब नहीं जलता. ऐसे सर्किट को हम क्लोज्ड कहेंगे या ओपन कहेंगे? ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहेंगे क्योंकि स्विच हमारा ऑफ पोजीशन पर है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन सर्किट. चिल्ड्रन, इन ओपन सर्किट, in closed circuit, the switch is in on position, means current can flow from one terminal to other terminal without any breakage of current. So that is called closed circuit. So in a closed circuit, switch is in on position, current is flowing
bulb is glowing. I hope you all have understood what is closed circuit and open circuit. Once again, closed circuit, current flows. Open circuit, current do not flows. The most common problem in circuit is an unintentional break in the circuit. You all can see the circuit diagram of open circuit and closed circuit. In closed circuit, you can see the circuit diagram. In this, you can see that the switch is in on position. In closed circuit, switch is in on position. Current is flowing. Bulb is glowing. Whereas in open circuit, switch is in off position. Current is not flowing. Bulb is not glowing. Such circuits are incomplete circuit. So all the closed circuits are complete circuits, whereas open circuits are incomplete circuits. Children, I hope you all have understood what is closed and what is open circuit. आप सभी दोनों के बीच में डिफरेंस बता पाएंगे. Now let's understand. After to make a circuit diagram, as you have seen in this picture, in this diagram, that different symbols are used. So children, in order to make any circuit diagram, you need to know what are the symbols of any electrical component. So what are electrical components? Electrical components are the parts of any circuit. हम जब भी कोई सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, उस सर्किट के डायग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू हैव स्विच. आप सभी ने स्विच को अपने घर में देखा होगा. आपके क्लासरूम में भी ये स्विच रहता है, आपके हॉस्टल रूम में भी ये स्विच रहता है. जब आपको बल्ब जलाना होता है, आप इस स्विच को जलाते हैं, और जब आपको ऑफ करना होता है, आप इस स्विच को ऑफ कर देते हैं. सो ये एक सर्किट का पार्ट है. इसी तरह से अगर आप सिंपल कोई भी सर्किट बनाते हैं, तो उस सिंपल सर्किट में एक सोर्स ऑफ करंट रहता है. सो सोर्स ऑफ करंट के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं या फिर सेल का इस्तेमाल करते हैं. सो उस सेल, आप सभी ने देखा है बेटा कि सेल क्या होता है. सो सेल आपने 6th क्लास में पढ़ा भी था कि एक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं. सो बल्ब, ये जो सेल है, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं. इसका जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों टर्मिनल्स कहलाते हैं. इसका एक टर्मिनल, ये वाला जो टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल, वेयर एज दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन दिस स्लाइड, द सिंबल ऑफ सेल इज ड्रॉन विद 2 वर्टिकल लाइन्स. सो 2 वर्टिकल लाइन्स, ये जो 2 खड़ी रेखाएं हैं, इनमें से the longer vertical line represents the positive terminal of cell, whereas the shorter line describes or represents the negative terminal of cell. Now, children, coming to the battery. So you all know that when 2 or more than 2 cells, like I'm having 2 cells, I have taken out from this torch. आप सभी बच्चों के पास टॉर्च रहता ही है हॉस्टल में. So you are keeping in नवोदया. सो मैंने इसी टॉर्च में से इस सेल, इन दोनों सेल्स को निकाला है. सो जब हम 2 सेल को इस तरह से अरेंज करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, जब हम इस तरह से अरेंज करते हैं, सो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स बैटरी. सो सिमिलरली यू कैन सी इन द सिंबल ऑफ बैटरी दैट द लॉन्गर लाइन, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंबल्स ऑफ सेल्स. सेल के दो सिंबल्स को जब एक साथ इकट्ठा किया गया, तो वो क्या बन गया? बैटरी का सिंबल बन गया. आप समझ रहे हैं? एक सेल का सिंबल, दूसरे सेल का सिंबल, जब दोनों सेल को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के सीक्वेंस में अरेंज किया गया, तो वो क्या बन गया? बैटरी का सिंबल बन गया. ओके. Now children, let's move towards another symbol, that is bulb. So you all have seen the bulbs. Like in this torch, we are having the small bulb. So in order to draw the symbol of bulb, you can make a loop.
यू कैन सी द लूप, एम जैसा दिख रहा है आपको, सो स्मॉल एम जैसा दिख रहा है, और उसके ऊपर एक राउंड सर्कल बनाया हुआ है और उसके दो टर्मिनल्स बनाए हुए हैं. सो दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब. लेट्स मूव टू द फॉरवर्ड. नाउ वी हैव द सिंबल ऑफ स्विच. स्विच विच इज इन ऑफ पोजिशन. लाइक अभी ये स्विच ऑफ पोजिशन पर है. आप सभी ऑफ पोजिशन का इस तरह के स्विच में आप ऑफ पोजिशन समझते हैं. सो यहां पर सिंबल में जब दोनों टर्मिनल, यू कैन सी द टू टर्मिनल्स, कैन यू सी द टू टर्मिनल्स? ओके. सो जब ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तार कनेक्ट किया जाता है, जब वो दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए रहेंगे, जब जुड़े हुए रहेंगे सॉरी, तो वह ऑन पोजीशन का स्विच कहलाएगा. इन दिस वे, ऑन पोजीशन. पर अंदर से हम सिंबल कैसा बनाएंगे? दोनों टर्मिनल्स एक साथ जुड़े हुए. सो इस तरह से जब आपका स्विच ऑन पोजीशन पर है, तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ये जो सिंबल है ये ऑन पोजीशन के स्विच का है. ऑफ पोजीशन के स्विच के लिए आप देख सकते हैं दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई भी जोड़ नहीं है, बल्कि उसका एक लाइन जो है तिरछा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है. सो वहां पर ब्रेकेज आ रहा है, मीन्स करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल. सो इन दिस वे this is the symbol of off position switch. Lastly, we are using the part of circuit. This is connecting wire. So for connecting wire, we have used the symbol, a plain simple line. It can be sometimes used vertically and sometimes horizontally. So I hope you all have understood what are the symbols that we are using to make any circuit diagram. Next slide is about the effects of electric current. So children, in this chapter we'll be learning the three effects of electric current. So we'll be learning about the heating effect of electric current, we'll be learning about the lightning effect of the electric current, and lastly we'll be learning about the magnetic effect of electric current. So children, let's start with what is heating effect of electric current. So heating effect of electric current means when current is flowing in a conducting wire, it shows or it becomes hot. जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है. सो गर्म होना यह सिद्ध करता है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने से वह तार गर्म हुआ है. सो इस तरह से आप ऐसे प्रभाव को विद्युत धारा के का हीटिंग इफेक्ट कहेंगे. सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट it shows heating effect. So students, let's start. Electric fuse. So electric fuse is a device, it is a safety device which works on heating effect of electric current. बच्चों, सेफ्टी डिवाइस किस पर काम करता है? विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है. So I have two types of safety devices with me, safety fuses with me. This is KitKat safety fuse type. It is made up of porcelain. It easily breaks when it falls down, so be careful while handling this. So you can see there are two parts of this safety fuse. ये जो KitKat safety fuse है या electric fuse है, इसमें दो हिस्से हैं. इसको हम कैरियर कहते हैं. इसमें दो टर्मिनल्स हैं और इसमें हम तार को जोड़ते हैं और फिर हम इस सॉकेट में लगा देते हैं इस तरह से. सो इन दिस वे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज. द नेक्स्ट टाइप ऑफ और द अदर टाइप ऑफ सेफ्टी फ्यूज इज MCB. इसे भी आप लोगों ने अपने क्लासरूम्स में, अपने हॉस्टल्स में, अपने घर में देखा होगा. ये ऑटोमेटिक होता है. ऑटोमेटिक का मतलब है जब आपके घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में जरूरत से ज्यादा, मतलब जितनी तार की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट का फ्लो होता है, तो उस कारण शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो सकती है. ओवरलोडिंग मतलब जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल होता है तो उस तार पर, जो आपके घर के सर्किट में तार है, उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है
जिस कारण गर्म तार जो है ज्यादा गर्म हो करके वहां पर आग लगने की संभावना बनती है। सो ऐसे में ये जो सेफ्टी फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये ऑटो कट हो जाता है। ऑटो कट मीन्स ये जो स्विच इसका दिख रहा है आपको, ये बटन अपने आप ये ऑफ पोजीशन पर आ जाता है। इस तरह से समझ रहे हैं बच्चे आप? सो ये आजकल ज्यादातर घरों में इसी सेफ्टी फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल होता है। ये जो किटकैट मैंने आपको दिखाया ये पुरानी जगहों पर या पुराने घरों में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। सो बच्चों, हमारे कई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जिनके अंदर भी सेफ्टी फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। वो कार्ट्रिज फ्यूज कहलाते हैं, जिसमें सिलिंड्रिकल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर तार रहता है। और जब भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाना होता है ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से या किसी भी दुर्घटना, इस प्रकार की दुर्घटना से, तो उसका इस्तेमाल उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के भीतर ही किया जाता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो इट वर्क्स ऑन heating effect of electric current. Our next effect of electric current is magnetic effect of electric current. Means जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार मैग्नेट की भांति काम करने लगता है। और इसको सबसे पहले 1820 में एक साइंटिस्ट थे, हेनरी क्रिश्चियन ऑयस्टर। इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो उसके पास में रखा हुआ जो कंपास था, आप सभी ने ये इस तरह का कंपास, मैग्नेटिक कंपास देखा हुआ है। सो जब इसके बगल से कोई तार जिसमें विद्युत धारा जा रही है या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, पास होती है, तो उस कारण ये जो मैग्नेटिक सुई है ये डिफ्लेक्शन शो करती है, मतलब हिलने लगती है। और आप सभी जानते हैं बेटा, 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई मैग्नेट जब उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा मैग्नेट आता है तब वो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। सो दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंटिस्ट मेड हिम टू रियलाइज दैट इन अ करंट कैरिंग कॉइल, जब कोई तार जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है या फ्लो हो रहा है वो मैग्नेट की भांति या उसमें इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि वह पास में रखे मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच हैज डेवलप्ड अराउंड द कंडक्टिंग वायर। सो ऐसे इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। चिल्ड्रन, यू कैन सी इन दिस सर्किट डायग्राम दैट देयर इज ए नेल, एक कील है, कील के चारों तरफ तार लिपटा हुआ है और उस तार का एक सिरा जो है स्विच से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा सेल से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से तार का दूसरा हिस्सा जो कील के नीचे है वह अगेन सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जब इस स्विच ऑन पोजीशन पर हम करेंगे, करंट उसमें फ्लो होगा, तो लोहे की कील जिसके ऊपर तार को लपेटा गया है वह एक मैग्नेट की भांति काम करने लगती है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम you can conclude that the iron behaves like electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए मैंने कहा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि ये ऐसा मैग्नेट है जब तक इसमें इसके चारों तरफ, इस लोहे की कील के चारों तरफ जो तार लिपटा हुआ है, जब तक इस तार में करंट का फ्लो होता रहेगा तब तक ही ये लोहे की कील चुंबक की भांति या एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। सो सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। चिल्ड्रन, यू ऑल मस्ट हैव सीन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी कॉमन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इन इलेक्ट्रिक क्रेन्स। आपने देखा होगा जब काफी वजनी सामान को या हैवी लोड को उठाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे रखना होता है, तो हम इलेक्ट्रिक क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। सो इलेक्ट्रिक क्रेन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है
जो उस भारी सामान को उठा करके जहां उसको अनलोड करना होता है वहां पर वो ले जाता है। तो जब मैग्नेट उस क्रेन का हिस्सा जो सामान के पास आता है उसको उठाता है, वो उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट की भांति काम करता है और उस लोहे के ऑब्जेक्ट से चिपक जाता है और इस तरह से उसको उठा करके दूसरे स्थान पर जब रखना होता है तो करंट को स्टॉप किया जाता है, करंट को रोक दिया जाता है और इस तरह से वो एक नॉर्मल लोहे के टुकड़े की भांति बिहेव करता है और वो जो लोड है वो उसको छोड़ देता है। सो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक क्रेन्स में करते हैं, हम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में भी करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन है शंघाई, चाइना में जो शंघाई है, शंघाई, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिक टॉयज इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। चिल्ड्रन, even in the magnetic medical field also we are using the electromagnets. अब चिकित्सा के क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है? कई बार जो वर्कर्स कहीं किसी फैक्ट्री में जहां पर लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं, बहुत छोटे पार्ट्स, अगर वो किसी कारण उनके बॉडी पार्ट्स लाइक उनके आईज में, नोज में या ईयर में कहीं चला जाता है, particularly in eyes. So in order to remove that iron, very small iron particle, where doctors are having, medical science is having some equipments which works on electromagnetism. और वह उसकी सहायता से उस आयरन के पार्ट को उसके पेशेंट की आंखों से या पेशेंट की बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मेडिकल फील्ड में भी करते हैं। बहुत कॉमनली हम सभी को छुट्टी का इंतजार रहता है। जैसे ही हम बेल की आवाज सुनते हैं, हम अपना बैग उठा करके हॉस्टल की तरफ भागना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक बेल हमारी लाइफ में, हमारी स्कूल लाइफ में बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करती है। मैं कहूंगी हम सभी को इसका बहुत इंतजार रहता है कि बेल बजती है और हम घर जाने वाले हैं या हम हॉस्टल की तरफ जाएंगे। सो बेटा, आपने सोचा है ये इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करती है? बहुत सारे स्कूलों में सिंपल आयरन रॉड वाली बेल भी होती है और कई स्कूलों में इलेक्ट्रिक बेल भी होती है। सो इलेक्ट्रिक बेल भी ये एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ये काम करता है। सो आइए देखें इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द इलेक्ट्रिक बेल। चिल्ड्रन, आई हैव द इलेक्ट्रिक बेल फॉर यू। सो दिस इज इलेक्ट्रिक बेल इन विच यू कैन सी अ गोंग या बेल है, ये हथौड़ा है जिसे हम हैमर कहते हैं। ये एक आयरन की स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। दिस इज द, ये जो यू शेप का आपको दिखाई दे रहा है लोहे का टुकड़ा जिसके ऊपर ये तार लिपटी हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। सो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट और दीज आर द टर्मिनल्स। इस तरह से ये लोहे का स्ट्रिप, ये बेल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हैमर जो इसको स्ट्राइक करता है। देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू, यू कैन सी द कॉन्टेक्ट स्क्रू। सो जब इलेक्ट्रिक सर्किट, इस बेल का इलेक्ट्रिक जो सर्किट है जोड़ा जाता है, तो उस वक्त ये जो दो तार हैं आप देख सकते हैं, ये तार, कैन यू सी द वायर? सो व्हेन दिस वायर इज अटैच्ड विद द टू टर्मिनल्स एंड यहां से हम इसको सोर्स ऑफ करंट देते हैं, तो जब हम तार से इसके दोनों हिस्से इससे जुड़ते हैं और करंट इसको मिलता है, तो ये तार, ये जो आप देख रहे हैं यू शेप के आयरन के टुकड़े पर लिपटा हुआ है, ये इस लोहे के टुकड़े को मैग्नेट की भांति काम करने स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये लोहे का टुकड़ा मैग्नेट की भांति काम करता है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस आयरन स्ट्रिप। और जैसे ही आयरन का स्ट्रिप इसके पास जाता है, कैन यू हियर द साउंड? जैसे ही ये लोहे का टुकड़ा, लोहे की स्ट्रिप इसके पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको खींचता है
अट्रैक्ट करता है। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि एक चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। सो जैसे ही ये आयरन स्ट्रिप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती है, ये हैमर इस बेल को, इस गोंग को जाके हिट करती है। इस तरह से अब जैसे ही ये हैमर आगे की ओर मूव करती है, ये कॉन्टेक्ट स्क्रू इसके कॉन्टेक्ट से दूर हो जाता है, और जैसे ही कॉन्टेक्ट स्क्रू इस आयरन स्ट्रिप से दूर होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। करंट के फ्लो रुकने से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो आयरन का टुकड़ा है जिस पे तार लिपटी हुई है, अब वह एक सिंपल आयरन का टुकड़ा बन जाता है। और एज अ रिजल्ट this iron strip and this iron U-shaped iron piece will not attract each other and this will move back. और जैसे ये वापस आता है, can you see, जैसे ये वापस आता है, it gets attached to this contact screw and the circuit completes. और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, फिर से इस रॉड में, इस तार में करंट का फ्लो होगा। ये जो रॉड है, जो यू शेप रॉड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की भांति काम करने लगेगी और फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी। ये मैग्नेट की भांति काम की, इसने आयरन स्ट्रिप को अपनी ओर खींचा, हैमर ने जाके बेल को हिट किया और साउंड प्रोड्यूस हुई। और वही फिर से जैसे ये हैमर हिट करेगा, कॉन्टेक्ट स्क्रू से आयरन स्ट्रिप का कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा। बच्चों, आई होप आपने इस इलेक्ट्रिक बेल की कंस्ट्रक्शन को समझा, इसकी वर्किंग को समझा होगा। इस वीडियो को देखिए और सर्किट में कैसे करंट का फ्लो होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स वॉच दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कैसे करंट फ्लो हो रहा है और विद्युत चुंबक आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट कर रही है और आयरन स्ट्रिप जैसे ही विद्युत चुंबक के पास में आता है, कॉन्टेक्ट स्क्रू से उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है और करंट फ्लो रुक जाता है या बंद हो जाता है। सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक बेल functions or work. So remember, electric bell works on the principle of electromagnetism, and in its construction you can see a gong, a hammer, a electromagnet, contact screw, iron strip, source of current, and the wire or the coil which is wounded around the iron strip. Thank you, students. So let's revise what we have learnt in this video. So we have learnt electric circuit. We have learnt the two types of circuit, open and closed circuit. We have learnt different symbols of components like bulb, cell, battery, connecting wire, switch when it is in on position and when it is in off position. After that, we have learnt the effects of electric current. So many items are there like your heater, room heater, geyser, immersion rod, etc. are the appliances which works on the heating effect of electric current. Children, we have learnt what is electric fuse. Electric fuse is again a safety device which works on the heating effect of electric current. बच्चों, आपने ये भी जाना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इस पर आधारित चलने वाली कुछ युक्तियां या अप्लायंसेस के बारे में जाना। आपने बेसिकली इस वीडियो में इलेक्ट्रिक बेल
जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे काम करती है के बारे में जाना। सो आप सभी से उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और फर्दर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।